ठीक है. So again, मतलब for the people joining in, we will be starting our I think कौन सा sixth lecture on Algomaniacs on DigiTP uh, by Tejas Khairnar. कोई भी डाउट हो बीच में you can unmute yourself and ask Tejas directly. वो legit mind नहीं करेगा, तो कुछ भी पूछना हो माइंड करेगा भी तो मतलब घबराना नहीं, वो कुछ कर नहीं पाएगा. सो पूछना हो तो पूछ लेना बीच में. एंड या तेजस. वैसे ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद हिंदी क्या? लाइक इंग्लिश में बोलूंगा तो लाइक प्रॉफ जैसी फील आ जाएगी. हाँ, तो उससे इंग्लिश. बेटर हाँ. इफ anyone's like uncomfortable with Hindi, then just you can write in the chat or unmute yourself, or we'll be presenting in Hindi. एनीवन? हेलो. I don't think so. ओके. हिंदी चले. चलो ठीक है. Okay. So let's see. एक सेकंड ना. हाँ. Let's see where DigiTP is used. Like बहुत सारे, like there are many problems where we have to count the number of integers, say x, between two specific integers a and b, such that the digits of x satisfy some specific property. So this can be calculated by using suppose that property is denoted by g of x. Like g of x is some function of the digits of x, number x. So then number of such integers between a and b can be calculated using the formula g of b minus g of a minus 1. That's pretty simple, I guess. किसी को डाउट है इसमें? एग्जांपल तो दे. Suppose like we have b equal to 50 and a equal to 10, and I have to just iterate over all the integers between a and b, that is between 10 and 50. Then I would just do one thing. I would iterate from 0 to 50. I would just calculate the value from 0 to 50 and then subtract the value from 0 to 9. Like it is here it is b and this is a minus 1. इसमें किसी को डाउट है? Okay, let's move on. Okay, so for applying DigiTP to a particular problem, I would just convert the given number like if I have to find the number of numbers between a and b, I will just find the numbers between 0 comma b, like all the integers between 0 comma b. First, I would convert the given number, that is b, into a string, that is s0 s1 up to sn minus 1, where si is the I digit from the left. Okay. When I would start generating integers having number of digits 1 till the number of digits equal to 1. So पहले मैं करूँगा S0 generate करूँगा, उसके बाद S1 करूँगा up to Sn minus 1 करूँगा. Not exactly Sn minus 1, let it be like some other string T0, T1 and Tn minus 1. I would just be ensuring that this particular number जो generate हो रहा है वो इस given number से छोटा हो. Like suppose तुम्हारा B है 357, then I would generate all the numbers between 0 to 357, all the integers between 0 to 357, like one by one generate करूंगा. And suppose मेरे को 2 digit number या 1 digit number generate करना है, then I would append zeros at the start of the number, जैसे like 001, 025, something like that. यहाँ पे कभी भी फंक्शन में स्ट्रिंग ग्लोबली डिक्लेयर करनी चाहिए, नहीं तो लाइक वो भी अननेसेसरी कॉपीज ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन बहुत बार रिकर्सिवली कॉल होगा, नहीं तो बहुत सारे कॉपीज आ जाएंगे स्ट्रिंग्स की, तो उसमें काफी टाइम होता है, कॉपी मतलब टाइम लग जाता है कॉपी करने में. ओके. सो एक इसमें किसी को डाउट था अभी जो पहले बताया उसमें लास्ट स्लाइड में? ऑनेस्टली मेरे को भी नहीं समझ में आया, मतलब कुछ मतलब एग्जांपल तो दे क्या पढ़ा रहा है. आई गेस ये पहले कर अभी ले, कुछ उसके ज्यादा बाद समझ वापस जाना. क्या हुआ? आया, तू बहुत तेज बोल हाँ, रहे थे थोड़ा जैसे यार फास्ट देख जा रहा है. 5 मिनट में तूने लगभग सब खत्म कर दिया. हाँ हाँ. ओके ठीक है. हम्म. मतलब पहले एग्जांपल दिखा दे, जो नीचे एग्जांपल बोलने वाला था ना तू शायद मोस्ट प्रोबब्ली, उसके बाद वापस आ जाना इस स्लाइड पे. अच्छा ठीक है चलो. So, देखो मेरे को अभी नंबर्स है, मतलब 0 to 5 के जनरेट करना है. सपोज यही मेरा गिवन क्वेश्चन है.
तो इसको कैसे करूंगा मैं? सो फर्स्ट मैं इसका फर्स्ट डिजिट देखूंगा, ये 5 वाला, मतलब इसको पहले मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ये स्ट्रिंग बन गई बेसिकली। एंड एक मैं वेरिएबल बना के रखूंगा टाइट करके। टाइट इज बेसिकली लाइक मैं कौन से नंबर सिलेक्ट कर सकता है गिवन पोजिशन, उसके लिए अगर टाइट 1 है सो द गिवन पोजिशन में अभी 5 है, तो मैं 0 to 5 यही इंटीजर्स ले सकता हूँ यहाँ पे। अगर वो 0 है तो मैं 0 to 9 कोई भी इंटीजर ले सकता हूँ। बेसिकली क्या होगा, क्योंकि मेरे को सब नंबर इससे छोटे चाहिए, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर 6 ले लूंगा तो वो इससे छोटा नहीं हो सकता। देयरफॉर मेरे को चेक करना पड़ेगा एट एवरी मोमेंट कि वो टाइट, मतलब टाइट 1 होगा तो मैं बस 0 to 5 जनरेट करूंगा, ऐसा कुछ। सपोज अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर ले लिया 4, 0 to 5 की जगह पे, मतलब 0 to 5 में मैं कोई भी नंबर दे सकता हूँ। अगर मैंने कोई भी नंबर बिटवीन 0 to 4 लिया, लाइक 5 - 1 एक्सेप्ट 5, तो मेरा टाइट हो जाएगा 0 नेक्स्ट इक्वेशन के वक्त। अगर मेरा टाइट 0 हो गया तो आई कैन टेक एनी नंबर बिटवीन 0 to 9 यहाँ पे, इस पोजिशन पे, बिकॉज ये नंबर मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 4 हो चुका है पहले से, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पहले से 4 हो चुका है। सो इसके बाद तो मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ बिटवीन 0 to 9, लाइक इसमें मतलब वो नंबर इससे छोटा ही होगा इन एनी केस। सो यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ। एंड सपोज यहाँ पे अगर ये फर्स्ट नंबर मेरा 5 है, देन मेरा जो टाइट होगा उसकी जो प्रीवियस वैल्यू है वही प्रिजर्व होगी, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट सिचुएशन पे भी चेक करना पड़ेगा वेदर मेरा नंबर जो है वो 8 हो, मतलब 8 से छोटा होना चाहिए। सपोज वो 8 से बड़ा होगा, देन दैट पर्टिकुलर नंबर जो जनरेट होगा वो इससे बड़ा ही हो जाएगा, तो उसमें कोई पॉइंट नहीं है। सो वही चीज थी, लाइक मैंने पहले इस नंबर को इसमें कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग को 5831 को, एंड देन चेक कर देगा लाइक फ्रॉम यहाँ पे एक डिजिट जनरेट किया, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। सो इसमें जो डीपी के स्टेट्स होंगे, लाइक सो बेसिकली अब कोई भी बेसिक क्वेश्चन में 3 स्टेट होंगे, लाइक तो फर्स्ट होगा नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब ये सपोज 5831 है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 4 है। सो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डिजिट्स मैं यहाँ पे ये ले लूंगा n, एंड सपोज मेरे को सम ऑफ द डिजिट्स निकालना है, तो उसकी सपोज n is 4 एंड मेरे को अपर लिमिट मतलब उसकी सम ऑफ डिजिट्स निकालना है, ये क्वेश्चन है। आई हैव टू फाइंड सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर। देन उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 9 + 9 + 9 + 9, क्योंकि 4 प्लेसेस है, मतलब 4 डिजिट्स है इसलिए। सो दैट वुड बी 36। सो ये m होगा उसका अपर लिमिट, मे बी ले लो 40 ले लो, कोई उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बट बेसिकली शुड बी ग्रेटर देन 36। देन टाइट वो जो पहले बोला था, एक पर्टिकुलर डिजिट पे मतलब कि यू हैव द रेस्ट्रिक्शन और नॉट, लाइक यहाँ पे अगर टाइट 1 होगा तो रेस्ट्रिक्टेड रेंज होगी उस डिजिट के लिए, अगर टाइट 0 होगा तो अनरेस्ट्रिक्टेड होगा। ओके, सो ये है। एंड ये यहाँ पे स्ट्रिंग ग्लोबली डिक्लेयर किया है, क्योंकि अगर ये स्ट्रिंग या फंक्शन में डिक्लेयर करोगे देन इट वुड बी कॉल्ड रिकर्सिवली, एंड यहाँ पे कॉपीज क्रिएट होती रहेंगी स्ट्रिंग की। सो उसमें काफी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है कोड की, मतलब टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। हाँ, सो अभी सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की साइज है 4, ओके, एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन नंबर 0। तो 0 से स्टार्ट करने के बाद ऐसे एक पोजीशन इंक्रीमेंट करते रहूंगा, 0 1 2 3 समथिंग लाइक दैट। एंड व्हेन माय पोजीशन इक्वल टू 4, लाइक स्ट्रिंग की साइज 4 हो गई, देन आई विल रिटर्न सम पर्टिकुलर वैल्यू जो मेरा फंक्शन का वैल्यू डिटरमाइन करेगी। ओके, देन उसके बाद सपोज मेरा जो डीपी है वो पहले से कैलकुलेटेड है, मैं सीधा वो रिटर्न कर दूंगा। लाइक मतलब डीपी मेन फंक्शन में डीपी वुड बी इनिशियलाइज्ड टू -1, all the values of dp, like all the values of dp would be initialized to -1, ये मेन फंक्शन में होगा। एंड सपोज मेरा डीपी पहले से कैलकुलेटेड है, देन मैं उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। एंड हाँ, लिमिट इज द लाइक लिमिट क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी ले सकते हो आप, लाइक पर्टिकुलर डिजिट के लिए। सपोज तुम्हारा टाइट सेट है पहले से, देन दैट वैल्यू वुड बी, मतलब वो स्ट्रिंग का वो पर्टिकुलर इंडेक्स, लाइक 5831 है,
एंड यहाँ पे मैं इस इंडेक्स पे हूँ 5 पे, एंड मेरा टाइट इक्वल टू 1 है पहले से, देन मेरा लिमिट जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि टाइट 1 है, सो लिमिट टाइट 1 है तो मेरा लिमिट इक्वल टू 5 होगा, एंड अगर टाइट 0 है तो मेरा लिमिट इक्वल टू 9 होगा. ये बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर, मतलब नथिंग लाइक दैट. लाइक इफ t इक्वल टू 1, लिमिट इक्वल टू s पोस्ट माइनस 0, एल्स लिमिट इक्वल टू 9 हो जाएगा. ओके, फिर उसके बाद बेसिकली मैं बाकी सब प्रॉब्लम्स पर आइटरेट करूंगा. सो मैं मेरा सपोज एक डिजिट फिक्स हो गया, सपोज दैट इज आई. मतलब ये फर्स्ट डिजिट मेरा सपोज आई हो गया, पोजीशन पोजीशन इक्वल टू पोस्ट पे मेरा सपोज ये डिजिट आई हो गया. देन आई विल गो टू द नेक्स्ट पोजीशन, दैट इज पोजीशन +1, एंड यहाँ पे काउंट इज लाइक द काउंट, वो फंक्शन की वैल्यू है. लाइक इफ आई वांट सम ऑफ द डिजिट्स, देन मेरा काउंट वो स्टोर करेगा. एंड यहाँ पे कंडीशन मतलब कुछ तो होगी, यहाँ पे इस केस में आई होगा क्योंकि मेरे को सम ऑफ डिजिट्स चाहिए, क्योंकि मेरा करंट डिजिट आई है, आई और मैं काउंट मतलब काउंट के साथ ऐड करूंगा. देन ओके, ये हो गया. मतलब यहाँ पे मेरा ये अपडेट हो रहा है बेसिकली फंक्शन का वैल्यू. एंड देन सपोज मेरा टाइट पहले से सेट है एंड मेरा आई इक्वल टू लिमिट है, मतलब मैंने मेरे आई की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल ले ली जो मैं ले सकता था, और मेरा टाइट पहले से 1 है. सो टाइट वुड बी लाइक सपोज 1 है और ये भी 1 है. सो उसके बाद तेरा जो नेक्स्ट टाइट होगा वो भी 1 ही होगा, क्योंकि सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया 5831 और मेरे फर्स्ट दो नंबर 58 सपोज ऐसा है. एंड मेरा यहाँ पे देखो, मैंने ये मेरा लिमिट यहाँ पे 8 था एंड मैंने मेरा टाइट भी 1 था. सो मेरे को नेक्स्ट सिचुएशन में भी मेरा टाइट 1 होगा, क्योंकि मेरे को चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो नंबर है वो 3 से मतलब मेरे को वो मैक्सिमम लिमिट वहां पे 3 होगी नंबर की, इसलिए टाइट 1 होगा. एंड सपोज मेरा आई नॉट इक्वल टू लिमिटेड, सो एनी नंबर विद व्हेन एंड बिटवाइज एंड किया टी के साथ तो वो 0 ही होता है. सो टाइट 0 हो जाएगा. एक बार टाइट 0 हो गया तो मैं कोई भी नंबर ले सकता हूँ. एंड देन मैं बेसिकली डीपी रिटर्न कर दूंगा, मतलब आंसर की वैल्यू डीपी को असाइन करके इसको रिटर्न कर दूंगा. इसमें किसी को डाउट? हेलो. किसी को कोई डाउट हो अभी तो पूछ सकता है. तेजस, एक बार इसका लाइक ट्री स्ट्रक्चर बना सकता है क्या, कि मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पे और अपन निकालना क्या चाहता है. मतलब क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा. द क्वेश्चन इज हम L2R में ये देखना चाहते हैं कि हर जो भी नंबर आता है L2R में उसके सम ऑफ डिजिट्स लेते हैं और इन सब का सम क्या होगा. वी वांट टू फाइंड दैट, है ना. तो L के सम ऑफ डिजिट्स प्लस L+1 के सम ऑफ डिजिट्स प्लस L+2 के सम ऑफ डिजिट्स, ऐसे करते करते R के सम ऑफ डिजिट्स, इन सब का सम फाइनल वैल्यू क्या देता है. इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? अगर कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो भी चार्ट में लिख सकते हो. यप, ये क्वेश्चन तो क्लियर है. अगर ये क्वेश्चन क्लियर है, सो बेसिकली ये जो सॉल्व फंक्शन बनाया है ये हमने तब बनाया व्हेन वी नोटिस सम ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स. इसमें ट्री स्ट्रक्चर कोई खाली स्लाइड है इसमें, ये डाल सकता है अभी? ओके, एक सेकंड डाल देता हूँ. कहाँ नहीं है शायद, एक सेकंड यही डाल देता हूँ. सो एक बार वो एक्सप्लेन कर दे कि हाँ, एक व्हाट वी आर सेकंड. डूइंग. ओके, सो ये मेरा जो फर्स्ट ये जो है, मतलब यहाँ पे मैं 0 to 5 कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ. हमें L2R चाहिए था, तो L2R की जगह हम 0 to L-1 और 0 to R निकाल रहे हैं. तो हम 0 से 5831 में सम ऑफ डिजिट्स का सम क्या होगा वो निकालना चाह रहा है बेसिकली. सो फर्स्ट डिजिट मेरा 0 to 5 के बीच में हो सकता है, लाइक इट कैन टेक एनी वैल्यू. सो मैं ऐसे 4 लेवल्स बना सकता हूँ. फर्स्ट लेवल में ये 0th लेवल है, मतलब पोजीशन के लेवल है बेसिकली. यहाँ पे पोजीशन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे पोजीशन इक्वल टू 1 है,
देन यहाँ पे पोजीशन इक्वल टू 2 है, पोजीशन इक्वल टू 3 है, एंड ये मेरा यहाँ पे लीफ नोड्स आएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, मेरा सपोज यहाँ पे जीरो 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 आ गया, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट डिजिट मैंने जीरो ले लिया सपोज, देन मैं उसके नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा, दैट इज पोजीशन +1, एंड वहां पे मैं कोई स्पेसिफिक डिजिट सिलेक्ट करूंगा, एंड देन अगेन नीचे जाऊंगा, वापस वहां पे कोई तो पोजीशन मतलब वापस कोई तो डिजिट सिलेक्ट करूंगा, सो देन अगेन नीचे एक बार एग्जांपल देगा कि कोई नंबर दे दे, मैं उसमें बताता। तो हाँ जीरो ओके, आगे नेक्स्ट में पोजीशन 1 पे कुछ हाँ 9 डाल दे। टू टू ले लिया हाँ, सपोज, एंड नेक्स्ट इसके 4 बाद डाल मैंने दे। 9 ले लिया, एंड इसके बाद 3 ले लिया, लाइक तो मेरा नंबर क्या जनरेट होगा, तो इसमें जो 0 लीफ टू नोड 9 3। 0293, हाँ, सो हाँ इसमें इस जो स्ट्रक्चर में, ऐसे ट्री स्ट्रक्चर में जो भी लीफ नोड्स होंगे, दोस विल बी द एक्चुअल नंबर्स फ्रॉम 0 to 5831। तो यहाँ पे जो भी लीफ नोड्स आ रहे होंगे वो 0 to 5831 नंबर्स होंगे। हम इन लीफ नोड्स में सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं एंड सम करना चाह रहे हैं, बट इसमें यू कैन नोटिस कि एक ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, कि हमने पोजीशन में पहले क्या सिलेक्ट किया था, जो टॉप लेवल पे सिलेक्ट किया था, वो हमारा एक्चुअली मैटर नहीं करता हम फर्स्ट लेवल पे क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो इसलिए हम यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस रख सकते हैं बिटवीन दीज टू। हम पोजीशन 0 पे कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम 0 to 4, देन हम पोजीशन 1 पे 0 to 9 सेलेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर पोजीशन 0 पे हमने 5 सेलेक्ट किया था, तो पोजीशन 1 पे हम 0 to 8 सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये इंडिपेंडेंस के कारण हम यहाँ पे डीपी बना पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आ जाएगी। एंड ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स कैसे कोड करते हैं वो उसने नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाया था, वो उस पे भी जा सकता है वापस समझाना हो तो। ठीक है, बेसिकली यही है कि ये जो तुम्हारी स्टेट है, ये वापस बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आ सकती है, ये अलग रूट से भी मतलब तुम्हें पूछ सकते हैं, लाइक तुम्हें ये स्टेट वापस से आ सकती है, अगर तुमने यहाँ पे 1 लिया, देन यहाँ पे कुछ और लिया, सपोज यहाँ पे वापस 1 लिया, क्योंकि सम ले रहा है ना, तो यहाँ पे 2 पे तुम्हारा सम हो गया पहले से, एंड ये स्टेट तुम्हारी वापस से आ सकती है, क्योंकि एक स्टेट में हम पोजिशन और उसकी सम देख रहे हैं बेसिकली। सो ये स्टेट वापस से आ सकती है, तुम्हें बस ये एक बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अगर मल्टीपल टाइम्स नहीं करनी पड़ेगी डीपी की वजह से। ओके ओके, ये पीछे हो गया। हाँ, तो वो उसका ये उसका कोड था, बेसिकली वही था। बेसिकली यहाँ पे लीफ नोड पे चेक हो रहा है, और लीफ नोड पे कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, लाइक ट्री की पहले से वैल्यू, मतलब उस नोड की वैल्यू पहले से पता है, तो उसको रिटर्न कर रहा है। एंड ये वो टाइट वाली चीज जो स्टार्टिंग में बता दी थी, और ये ट्री का ट्रैवल्स हो गया, लाइक ऊपर से नीचे जा रहे हो। अब कुछ मतलब लाइक मोस्ट प्रोबब्ली पहले नहीं समझ में आ रहा होगा, तो एक क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। सॉरी। ओके, सो क्वेश्चन ऐसा है कि लाइक I have to find the number of integers between 1 and k जिनकी sum of digits is divisible by d, मतलब multiple of d है, सॉरी multiple of d है, सही, लाइक वो डिविजिबल होनी चाहिए sum of digits जो भी आएंगी। सपोज यहाँ पे तुम्हारा d है 5 एंड मेरा गिवन नंबर है 3 2 5, तो इनकी sum of digits कितनी आ गई 10, एंड 10 पर 10 मतलब 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, सो ये मेरा एक वैलिड नंबर है। अब वैसे ही मैंने सपोज लिया 138, देन इसकी सम ऑफ डिजिट्स कितनी आई 12, बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, सो ये इनवैलिड है। एंड तो ऐसे मेरे को फ्रॉम 1 to k कुछ भी नंबर हो सकता है, सपोज 5000 मान लो, तो मेरे को 1 to 5000 में कितने नंबर्स डिविजिबल बाय गिवन d है वो देखना है, मतलब उनकी सम डिविजिबल बाय d है वो देखना है। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है सैंपल इनपुट में, 1 to 30 में कितने नंबर्स की सम डिविजिबल बाय 4 है, सो वो नंबर्स आता है 4 8 13 17 22 एंड 26, सो आउटपुट करूंगा मैं 6। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि माय केस लार्ज, लाइक 10 to power 4 है वो। हाँ, so इस एक केस बार में मतलब नाइव सोच लो, अगर किसी को नाइव आ रहा हो तो, कि नाइव हम कैसे करेंगे। तू माइंड तो नहीं कर रहा ना, मैं तेरे को इंटरप्ट कर रहा हूँ बार बार। ना चलो। सो सेकंड ईयर जो भी हैं, एक बार कोई अनम्यूट करके नाइव अपनी एल्गोरिथम बता सकता है जो तुम्हारे दिमाग में अभी एल्गोरिथम आ रही हो।
सिंपली 1 से ये तक आइटरेट कर सकते हैं और एक इंक्रीमेंट पे यूनिट्स वाली डिजिट इंक्रीज होगी और जब वो 9 मतलब रीसेट होगी तो टेंस वैल्यू मतलब फर्स्ट नॉन 9 वाली जो डिजिट होगी वो इंक्रीज होनी है और यूनिट वाली इंक्रीज होनी है और जैसे 9 वाली होंगी वो सब 0 पे रीसेट हो जाएंगी तो वो स्टोर कर सकते हैं तो 1 से गेम आइटरेट कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी बट उसमें वैसे श्रेष्ठ तेरे से मतलब हाँ हाँ ठीक है नहीं बोलूंगा लो नहीं 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 बोल सकता है चल यार और कोई नहीं बोल रहा था तू ही बोल अब एनी अदर पर्सन वैसे चलो जो नाइव भी बता दे पहले कि नाइव कैसा होगा और वो क्यों नहीं कर सकते तेजस तू ही बता दे और शेष तू बोल सकता है मैं मतलब माइंड मत करना मैं मजाक कर रहा था हाँ ठीक है बेसिकली सबसे नाइव मेथड तो ऐसी ही होगी, लाइक 1 2 के सारे नंबर्स देख लो, उसकी मतलब कोई भी स्पेसिफिक नंबर x है सपोज, बिटवीन 1 2 के, देन उसके सारे डिजिट्स देख लो, सपोज नंबर ऑफ डिजिट्स n है, तो वो सारे n डिजिट्स देख लो, उनकी सम ले लो एंड चेक करो वेदर इट इज डिविजिबल बाय d की नहीं। बट 1 to k तुम अगर सारे नंबर्स जनरेट करोगे ऐसे नाइवली तो 10 to 10 to the power 4 ये काफी बड़ा नंबर हो जाएगा। एक्चुअली 1 सेकेंड में तो 10 to the power 8 तक ही चलता है मैक्स। सो मतलब दिक्कत आ रही है यहाँ पे, लाइक एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। देन हाँ ओके, हाँ तो इसको डिजिट डीपी से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लाइक हम एक डिजिट बाय डिजिट आइटरेट करेंगे, लाइक एक डिजिट बना दिया उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट पे देखेंगे। सो लाइक बेसिकली ये जो स्टार्टिंग का वाला था वही कोड है, बस उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है। सो एन की मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 to the power 4 प्लस मतलब 10 to the power 4 हो सकती है, बट एरे के लिए हमने 5 एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। देन यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी है, यहाँ पे एन 105 मेरा ये जो डी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 है। सो रिमाइंडर्स ऑफ डी मतलब एनी रिमाइंडर ऑफ डी वुड बी लेस देन 100, जितना भी होगा 0 to 99 के बीच में होगा उसका रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर होगा सम। सो उसके लिए ये ले लिया सेकंड स्टेट, और थर्ड स्टेट अपना टाइट है। सो इफ मेरा पोजीशन इक्वल टू मतलब यहाँ पे सपोज मेरा 3 डिजिट नंबर है 359, सो यहाँ पे पोजीशन 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, एंड जैसे ही मेरा पोजीशन इक्वल टू 3 हो जाएगा देन आई हैव टू चेक वेदर मेरा रिमाइंडर दैट इज काउंट इक्वल टू 0। अगर वो 0 होगा तो मैं वो रिटर्न कर दूंगा, 1 रिटर्न करूंगा, मतलब ये नंबर वैलिड है, रिटर्न 1 इफ वैलिड एंड रिटर्न 0 इफ नॉट वैलिड। लाइक वैलिड नहीं होगा तो 0 रिटर्न करूंगा, बेसिकली वही चीज है। अगर काउंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 रिटर्न करेगा। अगेन सपोज मेरा डीपी जो है पहले से मैंने डीपी कैलकुलेट करके रखा है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, देन मैं वो रिटर्न कर दूंगा। लाइक यही है कि ये ट्री में ये नोड है स्पेसिफिक, एंड यहाँ से भी कोई आ रहा हूँ, मैंने पहले से यहाँ से इस रूट से मैंने जब आइटरेट कर रहा था मैंने ये इसकी वैल्यू पहले से निकाल के रखी थी, बट जब मैं इस साइड से आ रहा हूँ तो मेरे को इसकी वैल्यू वापस से निकालनी नहीं पड़ेगी। सो मैं ये जो वैल्यू हो मैं डायरेक्ट डाल दूंगा, यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। देन सपोज मेरा जो टाइट है मतलब यही सेम चीज, अगर मेरा टाइट 1 है देन मैं एस पोजिशन -0 ले लूंगा, वो मतलब फॉर अ गिवन डिजिट उसकी लिमिट कितनी हो सकती है। सो एस पोजिशन -0 ले लूंगा अगर टाइट 1 है, अगर टाइट 0 है तो मैं 9 ले सकता हूँ, ठीक है। ये आंसर तो मेरा ये काउंट करेगा फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ डीपी, कितने पॉसिबल नंबर्स हैं वहां तक बनेंगे। देन ओके यही सेम चीज है, लाइक पोजीशन +1 पे जाऊंगा, देन काउंट मेरा अभी करंट वाला रिमाइंडर है व्हेन डिवाइडेड बाय डी, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स ले रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो काउंट प्लस आई, लाइक ये जो मेरा अब तक का सम है, अब तक क्या सम मतलब अभी अब तक का क्या सम है मतलब डिजिट्स का, वो सम प्लस आई अभी करंट डिजिट उसका परसेंट डी, लाइक उसका रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय डी, ये यहाँ पे स्टोर हो रहा है। एंड यहाँ पे वही सेम चीज, अगर टी मेरा 1 है और आई इक्वल टू लिमिट है, मतलब मेरा टाइट 1 है और मेरा आई भी लिमिट मतलब लिमिट जितनी वैल्यू है आई की, देन मेरा टी 1 ही रहेगा, एल्स वो 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे आंसर का वैल्यू काफी बड़ा आ सकता है, इसलिए उसका मॉड्यूलो ले लिया 10 to the power 9 + 7 से, एंड अगेन उसको रिटर्न कर दिया। एंड देन इसमें क्या होगा, हमने 0 to k वाले सारे वैल्यूज ले लिए। बाय डिफॉल्ट 0 तो एक वैलिड नंबर होगा ही, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 0 इज 0 एंड एनी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ लाइक मतलब 0 इज मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, सो 0 एक एक्स्ट्रा नंबर हो जाएगा। सो जब भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, सो
एक 1 माइनस करना पड़ेगा, और ये प्लस मॉड क्योंकि वो कभी कभी मॉड नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए प्लस मॉड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे डीपी को सब -1 इनिशियलाइज कर दिया स्टार्ट में -1 के साथ, एंड देन इनपुट ले लिया एस और डी। एस मैंने नंबर को एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग में इनपुट लिया क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग में तो फिट होगा नहीं 10⁻⁴, ठीक है। इसमें किसी को डाउट अभी? ये काफ़ी बेसिक डाउट है, सो अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो लाइक इसके बाद हम एडवांस राउंड पे एडवांस क्वेश्चंस पे जाने वाले हैं थोड़े। सो अभी किसी को डाउट है तो अभी क्लैरिफाई कर लो, चार्ट में लिख सकते हो अगर मतलब शर्म आ रही हो अनम्यूट, सॉरी मतलब इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद अनम्यूटिंग योरसेल्फ यू कैन राइट इट इन द चार्ट एंड हाँ मतलब कोई भी डाउट है अभी, सो यू कैन जस्ट आस्क इट राइट नाउ। I'm sure there would be some doubts, like I don't think कि सबको सब clear हो गया होगा। ओके छोड़ो, लाइक अभी कोई पूछ नहीं रहा, तुम लेट्स मूव ऑन। चल आई गेस एक बार वो कर सकता है क्या, मतलब क्या? टेबल बना दे, लेकिन टेबल बहुत बड़ी बनेगी ना। डीपी की? डीपी की, हाँ टेबल मतलब Um, मतलब कैसे तू बना रहा है, लाइक ड्राई रन कर दे कोई एग्जांपल, कितना टाइम कोड लिख के लगेगा निकाल रहे। अरे क्या प्रिंट कर देना सिस्टम से। वो? नहीं, हैंड ड्रॉन करना ज़्यादा बेटर रहता है, मतलब हैंड बाय हैंड करना, उसमें समझ नहीं आती चीज़ें। एक कोई सेकंड। छोटा सा एग्जांपल 11 तो ले ले। बाइनरी नंबर्स का ले लेता हूँ फिर, नहीं तो ना यहाँ ना, पे मतलब 9 की जगह पे 2 आ जाएगा। या 11 ले ले, 11 में मॉड्यूलो 2 वाले देख ले कितने हैं। अच्छा ठीक है। सपोज मेरा जो है k है दैट इज 11 and d equal to 2, so I have to generate all the numbers between 0 to 11 and find like check whether the sum is divisible by 2, okay? So एक सेकंड, ये erase कर देता हूँ। So सपोज मैंने फर्स्ट डिजिट देख लिया, या मतलब यहाँ पे 11 है, मेरा नंबर 11 से छोटा होना चाहिए। सो मेरा जो फर्स्ट डिजिट है यहाँ पे सपोज इनिशियली टाइट इक्वल टू 1 होगा कोई भी केस में, क्योंकि मैं 1 से ज्यादा तो ले नहीं सकता। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 0, सो मेरा टाइट सपोज मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, देन मेरा इनिशियली काउंट भी 0 है। सो मेरा काउंट देखो यहाँ पे काउंट की भी वैल्यू रखता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे काउंट कितना था मेरा? 0 था। यहाँ पे 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, परसेंट ही ले रहा हूँ वैसे, तो वो 0 ही रहेगा। देन सपोज मैंने यहाँ पे 0 फिक्स कर दिया, तो नेक्स्ट डिजिट में कुछ भी नंबर ले सकता हूँ, 1 2 3 4 अप टू 9, लाइक 0 to 9 कोई भी नंबर ले सकता हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर ले लिया, सपोज 4 ले लिया, देन मेरा काउंट हो जाएगा काउंट प्लस 4, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस काउंट प्लस 4 परसेंट ही, दैट इज 0 हो जाएगा। सो एंड मेरा पोजीशन हो जाएगा, यहाँ पे इनिशियली पोजीशन 0 था, यहाँ पे 1 पोजीशन हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट में। सपोज यहाँ तो देन यहाँ पे पोजीशन मेरा हो गया 2, दैट इज इक्वल टू द साइज ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि 11 में 2 डिजिट्स है। एंड यहाँ पे मेरा काउंट भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि काउंट इक्वल टू 4% 2 व्हिच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, therefore I would be returning 1 because 04 is a valid number। वैसे ही 02 भी वैलिड है, वैसे ही 06 भी वैलिड है, क्योंकि काउंट क्या हो जाएगा? 2% 2, 6% 2, वैसे ही 8% 2, ऐसा हो जाएगा। ओके नहीं तो सपोज अगर यहाँ पे 0 की जगह पे मैंने 1 ले लिया, तो 1 लिया तो मेरा टाइट क्या हो जाएगा? टाइट मेरा वही रहेगा, क्योंकि आई इक्वल टू लिमिट है 1 जो था, एंड इनिशियली टाइट भी 1 था, तो टाइट 1 ही रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेट में मैं ले सकता हूँ एक तो 0 या फिर 1 ले सकता हूँ नेक्स्ट स्टेट। सपोज मैंने 0 ले लिया, जब स्टार्टिंग में सपोज मैंने यहाँ पे 1 लिया पोजीशन 0 पे, देन मेरा काउंट हो जाएगा 1, क्योंकि वो 0 प्लस आई दैट इज 1 हो जाएगा।
एंड नेक्स्ट स्टेट में सपोज मेरा ये आ जाएगा, हाँ, देन यहाँ पे जीरो आ गया, नेक्स्ट स्टेट में मैंने जीरो ले लिया, देन उसका काउंट क्या हो जाएगा, 1 + 0 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 1. सो 10 का सम ऑफ डिजिट्स क्या आता है, 1, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर ये वैलिड नंबर नहीं है, 10 इज नॉट अ वैलिड नंबर. और यहाँ पे 1 ले लिया, नेक्स्ट नंबर भी 1 ले लिया, देन काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 मॉड्यूलो 2 विच इक्वल टू 0. देयरफॉर लाइक, हाँ, तो काउंट इक्वल टू 0 हो गया, तो वो वैलिड नंबर है, देयरफॉर 11 इज आल्सो वैलिड नंबर. एंड ऑफ बाय डिफॉल्ट 0 0 भी वैलिड नंबर होता है, बट हमें 1 2 की के बीच में ही निकालना है. सो यहाँ पे आंसर 5 आ रहा होगा क्योंकि हम एक्चुअल 6 रिटर्न कर रहा होगा सॉल्व, बट हम -1 कर रहे हैं मेन फंक्शन में, तो आंसर हमारा 5 आ जाएगा. ठीक है. एनी डाउट्स इन दिस एग्जांपल? इस एग्जांपल से शायद अपने डाउट को पिन पॉइंट कर पा रहे होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा. हाँ, इंटरेस्टिंग है ठीक ना, है. मतलब रखे हैं ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी. हाँ है भाई. लाइक ठीक है, ये तो भी मतलब सिमिलर सा क्वेश्चन है, नहीं तो क्वेश्चन 3 पे आता है, उसके बाद क्वेश्चन 2 देख लेंगे. ठीक है, सपोज हमें गिवन L एंड R है, then we have to find how many numbers between L to R has 1 1 0 as a substring in the binary representation. एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक R है अपना 8 और L है अपना 0 ही ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए. देन इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 0 0 0 0, देन 0 0 0 1, मतलब ये 0 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, 1 का है, ये 2 का क्या आएगा, 0 0 1 0, 3 का आएगा 0 0 1 1, 4 का आता है 0 1 0 0, 5 का आता है 0 1 0 1, 6 का 0 1 1 0, 7 का 0 1 1 एंड 8 का 1 0 0 0. देन हमें मतलब चेक करना है कि वेदर 1 1 0 एक कोई सबस्ट्रिंग अकर करती है कि नहीं वो स्पेसिफिक नंबर में. सो यहाँ पे देख रहा है स्टार्ट में 1 1 0 तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इवन 2 के केस में भी नहीं है, 3 के केस में भी नहीं है, 4 के केस में भी नहीं है, इवन 5 के केस में नहीं है, एंड 6 के केस में ये 1 1 0 सबस्ट्रिंग आ गई, सो ये एक वैलिड नंबर है. इवन 7 के केस में भी कुछ नहीं है, 1 1 0 नहीं आ रही सबस्ट्रिंग, एंड इवन 8 के केस में भी सबस्ट्रिंग नहीं है. सो सपोज R इक्वल टू 8 एंड L इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर 1 आएगा. ठीक है. सो इसमें किसी को कुछ आइडिया आ रहा है कैसे करोगे ये? LNR is about 10 to power 18. Anyone? काउंट में कॉन्सेक्यूटिव वंस का सम स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1 1 आ गया तो अभी अपना काउंट 1 कर दिया, फिर 0 देख लिया कि आ रहा है कि नहीं. बट 1 1 के बाद वापस 1 आ गया तो अभी काउंट 1 ही रखेंगे अपन, पर उस बाद में देखेंगे जीरोस का. और स्टेट्स डीपी के 18 डिजिट है तो 18 वाला बनाएंगे. बेसिकली लाइक डीएफए टाइप का कुछ होगा. हाँ हाँ, डीएफए टाइप का. डीएफए टाइप का मतलब केएमपी टाइप हाँ. का कि अभी 1 आया है तो हम अपनी 0 से स्टेट 1 पहुंचा सकते हैं, या 1 से स्टेट 2 पहुंचा सकते हैं, या 2 से स्टेट वापस 2 पहुंचा सकते हैं. हाँ एग्जैक्टली वही ऐसा टाइप का, मतलब हमारे हाँ. स्टेट एंड जो डिजिट आ रहा है उसके कोरिस्पोंडिंग एक मैप बन जाएगा. सो वही एक सेकंड दिखा देता हूँ. वो डीएफए बना दे, मस्त है. हाँ वही, क्वेश्चन मस्त है. इसलिए तो लिया. तो देखो ये हम यहाँ पे 3 स्टेट लेंगे, 4 स्टेट लेंगे एक्चुअली. स्टेट 0 मतलब स्टार्ट किया नहीं कुछ, स्टेट 1, स्टेट 2, देन अगेन स्टेट 3 आ गया. ठीक है. स्टेट 0 मतलब मेरी स्ट्रिंग अब तक मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, स्ट्रिंग फाइंड करी ही नहीं है. सपोज मेरे को 1 मिल गया यहाँ पे, मतलब सपोज यहाँ पे देखो ये जो है ना 1 1 0 0 ऐसे जा रहा हूँ मैं, यहाँ से इटरेट करता हूँ,
मैंने यहाँ पे 1 फाइंड किया इस पॉइंट पे हूँ मैं अभी, तो मैंने 1 फाइंड किया तो मैं स्टेट 0 से स्टेट 1 पे चला जाऊंगा, ठीक है। एंड सपोज मैंने ये 0 फाइंड किया था स्टार्ट में, तो 0 से 0 पे ही रहूंगा बेसिकली। तो मतलब मेरे को स्टार्टिंग में 1 चाहिए, इसलिए अगर मेरे स्टार्टिंग स्टेट में अगर मेरे को स्टार्टिंग स्टेट पे 1 मिला तभी मैं नेक्स्ट स्टेट पे जाऊंगा। अगर मेरे स्टार्टिंग स्टेट पे 1 नहीं होगा तो मैं उसी स्टेट पे आ जाऊंगा वापस 0 पे। देन अगेन मैं स्टेट 1 पे हूँ, अगर मेरे पास 1 है अभी करंटली और उसके पास 0 आ रहा है, देन वो 1 1 0 के साथ मैच तो करने नहीं वाला है। देन मैं 1 से सीधा वापस 0 पे चला जाऊंगा अगर 0 आया तो। मतलब ये स्टेट से बेसिकली 0 1 2 3। एंड सपोज उसके बाद मेरे पास, सपोज इनिशियली यहाँ पे 1 है मेरे पास, एंड 1 के बाद वापस 1 आ गया। मिली, हाँ सिमिलर ही है। हाँ तो 0 1 के बाद 1 1 आ गया मेरे पास, देन सॉरी 1 के बाद मेरे पास वापस 1 आ गया तो मैं 2 पे जाऊंगा, ठीक है। सपोज अभी मैं यहाँ पे स्टेट 2 पे रुको, यहाँ पे ना स्टेट पे नाम, एक सेकंड, ठीक है छोड़ो, क्या होगा। हाँ तो यहाँ पे वापस 1 आ गया तो मैं वापस स्टेट 2 पे जाऊंगा। एंड ओके अभी मेरे पास करंटली 1 1 है। 1 1 मेरे पास स्ट्रिंग जनरेट हो चुका है। अगर इसके बाद मेरे पास 0 आ जाएगा तो मैं सीधा स्टेट 3 पे जाऊंगा। बट अगर इसके बाद मेरे पास वापस 1 आया, देन क्या हो जाएगा, मेरे पास वापस 1 1 ही स्ट्रिंग आ गई है तो मैं वापस 2 पे आ जाऊंगा। तो वापस 2 पे आ जाऊंगा, क्या होगा, हाँ तो वापस 2 पे आ जाऊंगा। देन अभी मैं स्टेट 3 में हूँ सपोज। स्टेट 3 बेसिकली मेरे को 1 1 0 स्ट्रिंग, मतलब ये जो स्ट्रिंग है अपने को जो चाहिए थी 1 1 0 वो हमने फाइंड कर लिए सपोज। तो हम स्टेट 3 में घुस जाएंगे। तो स्टेट 3 पे हमें 0 आए या 1 आए तो हम उसी स्टेट पे रहेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे 0 का 1 कुछ भी हो जाए तो हम स्टेट 3 पे रहेंगे। तो उसमें वही जो हमारा ये होगा, हमें और एक स्टेट, मतलब डीपी के वक्त डीपी में ये हो जाएगा। हम यहाँ पे 65 ले लेंगे, 65 क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स 61 62 होंगे 10⁻18 में। देन एक ये ले लेंगे स्टेट के लिए, 4 स्टेट का एक ये ले लेंगे। मतलब दूसरी स्टेट में ये स्टोर होगा, लाइक ये डीएफए की स्टेट स्टोर होंगी। एंड देन एक टाइप स्टोर कर लेंगे। तो ये अपना डीपी के अपना डीपीआर होगा। आदित्य इसमें किसी को मूर डाउट है? flashbacks। हाँ, ये मूर मिली है। एंड अगर किसी को नाम मतलब 0 1 2 3 बेसिकली डिनोट क्या करते हैं वो एक्सप्लेन करना है हाँ तो हाँ एक सेकेंड। 0 इज लाइक मेरी नल स्ट्रिंग है। 1 है मेरा कि अभी तक मेरे को वो जो string- सबस्ट्रिंग है 1 1 0 वो कहीं पे भी नहीं मिली है, मेरे को मिली नहीं है बिल्कुल। 1 मतलब मेरे को 1 सबस्ट्रिंग मिल चुकी है, 2 मतलब 1 1 मिल चुकी है, और 3 मेरे को 1 1 0 मिल चुकी है। एंड लाइक कहीं पीछे रिप्रेजेंटेशन में है, हम्म तो इसलिए हम ऐसे वो कर रहे हैं। ये हमें हार्ड कोड करना पड़ेगा, ये जो हमने हाँ हार्ड कोड रखना पड़ेगा। एरोस बनाए हैं वो हम हार्ड कोड कर देंगे कोड में। कोड दिखा सकते हैं मतलब इसके। एनी डाउट्स इन एक दिस? कितना बड़ा किसी कोड को, क्यों है? अरे ये मेन फंक्शन भी है साइड में, ये यहाँ पे। टू बिन क्या है? अच्छा, टू बाइनरी। अरे अरे बाइनरी है। अरे। हाँ। अब ये क्लियर है डीएफ, मतलब ये जो स्टेट वाली चीज, तुम्हें मार्कऑफ चेन तो पढ़ा ही होगा अभी लास्ट सेमेस्टर में। अरे एक सवाल कर सकता है? अभी जो बोला ना तुम लोगों ने कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय डी का, हाँ वो कर सकता है सम ऑफ डिजिट्स का स्क्वायर डिविजिबल बाय डी। फिर ये मार्कअप चेन वाली आइडिया पूरा साफ हो जाएगा। सेम ही तो होगा, सम ऑफ स्क्वायर्स और डिजिट्स बाय डी। वही तो जो पिछली चीज करी थी वही तो होने वाली है बाद में वापस। नहीं, तू एक एक करके डिजिट ऐड करेगा ना, तो तू डी स्क्वायर को अपडेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो तेरे पास मतलब मान ले, समझ गया ना? नहीं तेरे नहीं पास डी डी स्क्वायर मतलब तेरे पास सम स्क्वायर मॉड्यूलो डी मेंटेन कर रखा है। अगले स्टेप में तेरे को सम प्लस करंट डिजिट जो भी आई है वो स्क्वायर मॉड्यूलो डी चाहिए, अच्छा। जो कि डायरेक्ट ए स्क्वायर से नहीं आ रहा। हाँ तो हाँ। इसीलिए मार्कअप चेन को तेरे को एक्सटेंड करना पड़ेगा, ए स्क्वायर कॉमा एस मेंटेन करना पड़ेगा। यस यस यस, समझा। अरे इसमें इसका और एक मॉडिफाइड वर्जन भी है। लाइक एक सेकंड दिखा देता हूँ वो भी।
मतलब इसमें तो हमने हार्ड कोड किया है, लाइक ये जो स्ट्रिंग है, मतलब ये जो स्टेट्स वगैरह है वो हार्ड कोड करी है। तो पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। हम्म, अच्छा, ये कोड देख लो इसका, लाइक बेसिकली क्या है। मतलब मैंने स्टेट्स बता दिए 65, 4 एंड 2। लाइक ये स्टेट्स होंगी, मतलब मैक्स, मतलब डीपीआर ऐसा बनेगा। सपोज मेरी स्टेट इक्वल, मतलब सपोज मैंने मैंने ओके, सपोज मेरी पोजीशन इक्वल टू साइज ऑफ स्ट्रिंग होगी। सपोज स्ट्रिंग की साइज है 5 एंड मेरी उतनी पोजीशन हो गई, देन आई वुड जस्ट चेक वेदर स्टेट मेरी 3 है कि नहीं, मतलब लास्ट स्टेट पे हूँ कि नहीं। अगर मैं लास्ट स्टेट पे हूँ तो मैं रिटर्न करूंगा 1, नहीं तो 0 रिटर्न कर दूंगा। दैट इज इट इज नॉट अ वैलिड स्ट्रिंग। एंड अगेन ये डीपी मैंने पहले से बना के रखा है कि नहीं, वो वाली चीज हो गई। एंड यहाँ पे अगर मेरा टाइट सेट है, देन वो दैट वुड बी एस, मतलब लिमिट वुड बी एस पोजीशन माइनस 0, एल्स इट विल बी 1। 1 क्योंकि यहाँ पे बाइनरी नंबर ले रहा है, यहाँ पे 9 नहीं होगा, डेसिमल नंबर्स में 9 होता है। यहाँ पे बस एक सेम ही चीज है जो पहले करी थी, बस इसमें एक्सप्लिसिटली लिखा है न्यू टाइट। जो न्यू टाइट होगा मेरा, मतलब नेक्स्ट इटरेशन में कौन सा टाइट होगा, वो लिखा है न्यू टाइट इक्वल टू टी। सपोज मेरा आई लिमिट के बराबर नहीं है, तो मेरा टाइट ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा, एल्स मेरा जो टाइट है वो प्रीवियस वैल्यू प्रिजर्व करेगा। ओके, सपोज अभी मेरा जो करंट स्ट्रिंग में जो नंबर आ रहा है वो 0 है, ये करंट नंबर 0 आ रहा है, तो मैं कौन सी स्टेट पे जाऊंगा वो देखना है। तो बेसिकली यही है। वन, ये मेरा स्टेट 0, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 है। ओके, सो सपोज मेरा, मैं स्टेट 0 पे हूँ और अभी मेरे को नेक्स्ट डिजिट मेरा 0 आ रहा है, तो मैं स्टेट 0 से वापस स्टेट 0 पे ही जा रहा हूँ। एंड सपोज 1 आ रहा है तो मैं स्टेट 1 पे जाऊंगा। सो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पे S0 आ जाएगा, यहाँ पे S1 आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं अभी स्टेट 1 पे हूँ एंड स्टेट 1 के बाद मेरे को 0 आ रहा है, देन मैं स्टेट 0 पे जाऊंगा। अगर सपोज ये स्टेट 1 के बाद मुझे 1 आ रहा है वापस, देन मैं स्टेट 2 पे जाऊंगा। देन अगेन यहाँ पे मैं स्टेट 2 पे हूँ, देन सपोज मेरे को 0 आया, देन आई वुड गो टू स्टेट 3, एल्स आई वुड बी एट स्टेट 2 इटसेल्फ। ठीक है, देन स्टेट 3 पे हूँ सपोज, एंड 0 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं स्टेट 3 में ही रहूंगा। स्टेट 3, स्टेट 3। सो ये देख लो, स्टेट अगर मेरा 0 है तो न्यू स्टेट मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये न्यू स्टेट का वेरिएबल है, तो न्यू स्टेट क्या हो जाएगी मेरी, 0 हो जाएगी अगर मैं स्टेट 0 पे हूँ। एस आई इक्वल इक्वल टू 0 नहीं होगा क्या? यार एस आई जो तेरा है वो तो मैक्सिमम लिमिट वाला स्ट्रिंग है, मैं अभी करंट स्ट्रिंग पे देख रहा हूँ ना। मतलब ये जो है, सपोज मेरा एस है 1101, तो ये मेरा गिवन, ये तो मेरा मैक्सिमम लिमिट है, मैं इस लिमिट के नीचे वाले स्ट्रिंग जनरेट करूंगा। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट पे एक नया नंबर ले रहा हूँ, दैट इज आई एट अ गिवन पोजिशन, वो आई नंबर होगा। तो एस मतलब एट अ गिवन पोजिशन मेरा डिजिट आई होगा। सो एस आई की जगह बस आई आएगा, समझ रहा है? मतलब हम हाँ ठीक है। ये आई हम नेक्स्ट डिजिट देख रहे हैं कि नेक्स्ट डिजिट हमें डालना कौन सा है, तो 0 या 1। हम्म, सो अगर स्टेट 0 होगा तो न्यू स्टेट 0 होगा, ये टेबल से देख सकते हो। स्टेट 1 होगा तो नेक्स्ट स्टेट 0 होगा, स्टेट 2 होगा तो देन अगेन 3, स्टेट 3 होगा तो अगेन नेक्स्ट स्टेट 3 हो जाएगा। एंड अगेन सपोज यहाँ पे स्टेट, अगर मेरा इनपुट 1 है, यहाँ पे आई इक्वल टू 0 है, यहाँ पे अगर मेरा करंट डिजिट मतलब 1 है, देन मैं वो क्या करूंगा, स्टेट 0 से स्टेट 1 जाऊंगा, स्टेट 1 से स्टेट 2 जाऊंगा, दिस थिंग S1 से S2। यहाँ पे अगर मेरा स्टेट 2 है, देन नेक्स्ट न्यू स्टेट वुड बी 2 अगेन, स्टेट 2 से स्टेट 2। एंड यहाँ पे अगर स्टेट 3 होगा तो अगेन स्टेट 3 रहेगा। एंड अगेन बस यही मतलब आंसर में इंक्रीमेंट कर दिया, मतलब एक नेक्स्ट पोजीशन पे गया हूँ, न्यू स्टेट और न्यू टाइप ले लिया बस, एंड देन डीपी रिटर्न कर दिया। इसमें किसी को डाउट? तूने इसके बाद वो वाला क्वेश्चन डाला है क्या कि व्हाट इफ एन आर्बिट्ररी सबस्ट्रिंग देख रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं वो डाला नहीं है, मैं अभी बता दूंगा वैसे। अच्छा ठीक है। हाँ। हम्म। यहाँ तक क्लियर है सबको?
सेकंड या राइट कोई बोल दो. हाँ यार. ठीक है. सो ये तो काफी बेसिक फंक्शंस है. लाइक बाइनरी में कन्वर्ट किया है स्ट्रिंग को. ठीक है, मतलब गिवन नंबर को बाइनरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है टू बिन वगैरह. यहाँ पे एल और आर ले लिए इनपुट्स. एल को डिक्रीमेंट किया क्योंकि मेरे को एफ ऑफ आर माइनस एफ ऑफ एल माइनस वन करना है. देन मैं यहाँ पे एस को असाइन करना हूँ. लाइक बाइनरी बाइनरी मतलब जो बाइनरी वैल्यू होगी एल की उसमें. देन y उसको सॉल्व करेगा लाइक 0,0,1 क्योंकि टाइट हमारा हमेशा स्टार्टिंग में 1 होता है तो यहाँ पे 1 होगा. एंड वैसे ही सिमिलरली r क्रिएट किया एंड देन x माइनस वाई आउटपुट करके. ठीक है. हाँ, इसका ही एक एडवांस मतलब सिमिलर क्वेश्चन है. एक सेकंड दिखाता हूँ. हाँ, सब क्वेश्चन पढ़ लो एक बार. पढ़ लो. सो बेसिकली क्या है कि हमें एक इंटीजर दिया है n. सो हमें n लेंथ की स्ट्रिंग बनानी है सच दैट अ गिवन लेंथ ऑफ मतलब हमें गिवन गिवन स्ट्रिंग जो होगी, ये जो गिवन स्ट्रिंग है दैट इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ दैट स्ट्रिंग. तो ऐसे कितने सारे स्ट्रिंग्स बना सकते हैं हम ऑफ गिवन लेंथ n. और इसकी लेंथ m है. जो नीचे वाली स्ट्रिंग यहाँ पे 5 है m और यहाँ पे ऊपर n इक्वल टू 6 है. तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ए बी सी मतलब जो गिवन स्ट्रिंग है उस मतलब सब स्ट्रिंग है उसके आगे कोई भी एक्स नंबर एक्स अल्फाबेट डाल सकते हो या फिर उसके पहले कोई भी एक्स डाल सकते हो. तो टोटल आ जाएंगे 26 प्लस 26 दैट इज 52. तो ये क्वेश्चन तो और ये जो पहला वाला क्वेश्चन था वो सेम ही है. बस इसमें ये जो हमने उस डीएफए बनाया था लाइक वो जो स्टेट वाली डायग्राम बनाई थी उसमें हार्डकोर किया था. इसमें हम कोड करके कर सकते हैं. वही चीज है. मतलब ये क्वेश्चन आप बाद में ट्राई कर सकते हो. लिंक डाल देता हूँ चैट पे. ओके. क्वेश्चन 2 पे आता है. मतलब ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है. लाइक a number is called as 369 number if the count of 3 मतलब number of digits मतलब अगर 3 तुम्हारा और number of occurrences of 3 and number of occurrences of 6 and number of occurrences of 9 तीनों के इक्वल हो. occurrences of 3 equal to occurrences of 6 equal to occurrences of 9 and occurrence of 3 is at least 1. ये क्वेश्चन है. So given A and B, how many 369 number are between A and B? So ये है लाइक ये सपोज ये नंबर है तो यहाँ पे 3 कितनी बार आया, एक बार आया. 6 कितनी बार आया, एक बार आया. 9 कितनी बार आया, 1 एक बार आया. एक रिटर्न इक्वल टू है. तो सबकी सबकी नंबर ऑफ अकरेंसेस तो इक्वल है और 3 एटलीस्ट एक बार तो आया है यहाँ पे. सो ये वैलिड नंबर है. सो मतलब यहाँ पे भी इस केस में भी क्या होगा, 3 दो बार आया है, 6 भी दो बार आया है, 9 भी दो बार आया है. सो ये भी एक वैलिड नंबर है. एंड अगेन यहाँ पे एक बार आया है तो ये भी वैलिड नंबर है. बट इस केस में यहाँ पे 6 है ही नहीं. इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 नहीं है, इसमें भी 6 9 3 कुछ भी नहीं है. तो ये इनवैलिड नंबर है सारे. सो गिवन ए एंड बी हमें बस प्रिंट करना है कि कितने सारे नंबर्स वैलिड है. एंड ए और बी की वैल्यूज 10 टू पर 50 तक है. इसमें कोई बता सकता है कि स्टेट्स क्या होंगी डीपी की? कोई बताना चाहेगा? लाइक इसमें स्टेट्स वैसे मैं भी सोच ही रहा हूँ. थ्री और टू क्यों, मतलब सेकंड स्टेट क्यों है? टू तो ठीक है, वो टाइट वाली होगी. 51 तो पोजीशंस वाली होगी. बीच वाली स्टेट का रीजनिंग क्या है? भानु मैं भी वही सोच रहा हूँ. 51 3 अच्छा नहीं 3 नहीं सॉरी
सेकेंड स्टेट 369 का काउंट करेगा, बट उसमें वो 369 का काउंट नहीं कर पाएगा ना। वी वुड अगर हमें 369 का काउंट स्टोर करना है स्टेट में ही, तो समझ लो 3 का काउंट आता है हमारा लेट्स से 26, तो हमारा 51 26 होना चाहिए बीच में, समथिंग लाइक दैट, ताकि हम 3 की काउंट 1 है या 2 है या 3 है वो वहीं पे स्टोर कर सके, राइट, इन द लाइक टेबल फॉर्म। सो लाइक सबसे पहले क्या आता है दिमाग में, डीपी ऑफ 51 51 लाइक 3 का मैक्सिमम अकरेंसेस कितना सकते हैं 51, देन इसका भी 51 आएगा एंड इसका 2 आएगा। लाइक ये तो पोजीशन के लिए हो गया, एंड ये नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ 3, नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ 3 के लिए, नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ 6 के लिए, नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ 9 के लिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तेजस एक्चुअली, ये अच्छे से मतलब ये इसमें किसी को डाउट है कि हम यहाँ पे occurrences ऑफ 3 स्टोर कर रहे हैं इन द टेबल, राइट, हम वैसे नहीं स्टोर कर पाएंगे नॉर्मली, क्योंकि वैसे डीपी की ये जो वैल्यू होती है दैट स्टोर्स की कितने नंबर्स हैं ऐसे स्टेट में, क्योंकि डीपी 5132 क्यों नहीं काम कर रहा, वो मतलब चीज है ना तेजस। ओके, सो हम एक्सप्लिसिटली काउंट स्टोर करते हैं लाइक अकरेंसेस ऑफ 3, 6 और 9। बट अगर हाँ मतलब ये कोई भी क्वेश्चन में लाइक मेमोराइजेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, नंबर ऑफ स्टेट्स, लाइक इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, लाइक 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 51 इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन अ गिवन स्टेट। तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम टिपिकली 9 ऑपरेशंस करते हैं क्योंकि लिमिट की वैल्यू मैक्सिमम 9 आ सकती है। सो वो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा इस केस में। अब वो 10 टू पर 8 के ऊपर भी चला जाएगा, 10 टू पर 8 से ज्यादा नंबर हो जाता है। सो ये कोड तुम्हें टाइम लिमिट दे देगा बेसिकली, सो ये चलेगा नहीं। बट यहाँ पे की ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर अकरेंसेस ऑफ 3 17 से ज्यादा है, अकरेंस ऑफ 3, 6 या 9 कुछ भी, किसी का भी अकरेंस 17 से ज्यादा है, देन वैसे भी हमें आंसर तो मिलने नहीं वाला, क्योंकि सबके अकरेंसेस मतलब ये हो जाएगा ना कि अगर सपोज अकरेंसेस ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 17, तो अगर कोई वो नंबर वैलिड है देन सभी का अकरेंस ग्रेटर देन 17 होना चाहिए, इज ग्रेटर देन 17। अकरेंस ऑफ 9 इज आल्सो ग्रेटर देन 17 क्योंकि ये तीनों इक्वल है। बट इनकी तुम सम करोगे सो कितना आ जाएगा 51। सो नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी ग्रेटर देन 51 व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको बस 18 कर देंगे क्योंकि नंबर ऑफ अकरेंसेस तुम्हारा मैक्सिमम 17 तक ही जा सकता है। वैसे एक और ऑप्टिमाइजेशन है, शायद तू नहीं मतलब दूसरी ऑब्जर्वेशन तेरे को पता चल रही है, बोल। occurrences ऑफ 3 माइनस occurrences ऑफ 9 और occurrences ऑफ 6 माइनस occurrences ऑफ 9, सिर्फ वो दोनों स्टोर कर। उससे भी होगा। सो हाँ ओके, लाइक 3 वेरिएबल की जगह हम दो वेरिएबल भी कर सकते हैं। बट वो नेगेटिव भी तो जाएगा ना। हाँ तो लाइक हाँ, वो लगा दे, negative चलेगा। नेगेटिव के साथ वो लगा दे ना अपना एक ऑफसेट बोलता है ऑफसेट। हाँ नहीं, बट वो -17 टू +17 है ना। हाँ वही प्लस ऑफसेट लगा दो कि 34 +18 कुछ। हाँ नहीं, बट देन 34 टाइम्स 34 हुआ। हाँ और यहाँ पे 18 टाइम्स 18 टाइम्स 18, 34 टाइम्स 34 अच्छा, तो ये कम ही होगा। हाँ ठीक है मतलब okay. अच्छा उसने क्या बोला समझा, लाइक यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐसे भी बना सकते हो। 51 होगा, यहाँ पे 34 होगा, यहाँ पे 34 होगा, यहाँ पे 2 होगा। सो इस स्टेट में क्या स्टोर होगा, occurrences of 3 minus occurrences of 6। इस स्टेट में क्या स्टोर होगा, +17 occurrence, हाँ +17 ठीक है। 7 क्योंकि यहाँ पे 17 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि अगर अगर occurrences of 6 is greater than occurrences of 3 तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे 17 डाल दिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, occurrences of 6 minus occurrences of 9 plus 17। बस यही है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या फैक्टर आ जाएगा, 34 इंटू 34, और इनिशियली यहाँ पे था 18 इंटू 18 इंटू 18। सो ये 34 वाला छोटा हो गया, तो ये थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज वर्जन है, बाकी कुछ नहीं। तो इसमें बस यही है। हाँ, और ये कोड मेरा पहले वाला ही है जिसमें ये 18 18 18 वाला था, ये वाला डीपी था। सो
सपोज मेरा काउंट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, तो मैं रिटर्न 0 कर दूंगा। ठीक है, मतलब ये पॉसिबल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर अगर नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 17 सबको उतना ही होना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिजिट्स ओवरशूट हो जाएंगे। 50 है तो हम 51 तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, एंड अगर मेरा पोजीशन इक्वल टू साइज ऑफ द स्ट्रिंग हो गया, देन आई वुड जस्ट चेक कि अकरेंसेस सबकी इक्वल है एंड द काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, काउंट ऑफ 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, डीपी पहले से कैलकुलेट करके रखी तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। ये अगेन वो लिमिट वाली चीज हो गई जो पहले बताई थी। देन न्यू टाइट मेरा इनिशियली मैंने वो टी बना के रखा है, एंड अगेन सपोज मेरा आई इज नॉट इक्वल टू माई लिमिट, देन मेरा टाइट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। लाइक टाइट वुड बी रीसेट, लाइक मैं कुछ भी ले सकता हूँ उसके बाद, 0 तो नहीं कोई भी नंबर ले सकता हूँ। एल्स मेरा नया जो टाइट होगा वो प्रीवियस वैल्यू को प्रिजर्व करेगा। ठीक है, देन इसमें यही चीज है, लाइक आंसर इक्वल टू आंसर प्लस, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ, पोजीशन प्लस 1। यहाँ पे काउंट ऑफ 3, सपोज मेरा आई इक्वल टू 3 है तो काउंट 1 से इंक्रीमेंट होगा, नहीं तो वो 0 से इंक्रीमेंट होगा। आई इक्वल टू 3 यहाँ पे लिखा है वो। सेम फॉर 6, सेम फॉर 9। ठीक है, एंड यहाँ पे वैल्यू काफी बड़ी हो सकती है, इसलिए मॉड ले लिया है, एंड अगेन वो वैल्यू रिटर्न कर दी। Any इसमें किसी को doubt in डाउट? this one? Sorry. सेकंड जो था समझ में आ गया तो यस बोल दो चैट में, बस और कुछ नहीं। सेकंड ईयर राइट्स नहीं तो थर्ड ईयर राइट्स भी जो है, मतलब समझ में आ गया तो हाँ यस बोल दो। यस, हाँ चार्ट में यस लिख दो अगर समझ में आ गया तो सब। हाँ हम 7 यस के बाद चालू करते हैं। क्या? अभी 3 यस आए ना, चल छोड़। अच्छा ठीक है, और कोई डाल दो। ठीक है, क्वेश्चन टू बी, हाँ ठीक है। तो मेन फंक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं। मेन फंक्शन में मैंने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट ले लिया है, एंड हाँ यहाँ पे मेरा क्या होगा, ए मतलब मेरे को ये गिवन, मतलब मैंने ये जो गिवन इनपुट है उसको मैं फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग में ही ले सकता हूँ, क्योंकि 10 टू पावर 50 तो कोई डेटा टाइप हैंडल नहीं कर पाएगा, इंटीजर डेटा टाइप, इंटीग्रल डेटा टाइप। तो मैं इसको फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग में इनपुट करता हूँ, एंड सपोज मेरा ए जो है 3900 है, तो मेरे को ए से एक सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली। तो मेरे को ए को बनाना है 3899। तो मैं क्या करूंगा, मेरा आई जो है इंट ए, मतलब यहाँ पे ये होता है पोजीशन इंडेक्सिंग कैसे होती है स्ट्रिंग की, 0 1 2 3। सो मैं आई मेरा ले लूंगा 3, दैट इज ए डॉट साइज -1, एंड वाइल ए ऑफ आई इज इक्वल टू 0 मैं सबको 9 में कन्वर्ट कर दूंगा, एंड जैसे ही मैं मेरा और आई डिक्रीमेंट करूंगा, मतलब एक एक कम होता जाएगा, जैसे ही मेरा ये लूप खत्म हो जाएगा मैं इसको एक ये जो अभी करंट पोजीशन है उसको 1 से डिक्रीमेंट कर दूंगा। सो ये मेरा नया ए बन जाएगा, और वैसे ही मेरा मतलब, और ए बनने के बाद मैं उसको एस के साथ असाइन कर दूंगा, एस को ए की वैल्यू दे दूंगा, देन ये सॉल्व कर दूंगा। टाइट इनिशियली शुड बी 1, क्योंकि वही लाइक स्टार्टिंग डिजिट को रेस्ट्रिक्शन होता ही है इन एनी केस। देन सिमिलरली बी के लिए कर दूंगा, एंड एक्स माइनस वाई, क्योंकि हम मॉड्यूलर वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए प्लस मॉड करके उसका अगेन मॉड ले लिया एंड आउटपुट कर दिया। ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन 4 पे आता है। क्वेश्चन एक बार देख लो। एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है हमें एल इन बेस 2, लाइक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बेसिकली, एंड a plus b is less than equal to l, and a plus b equal to a XOR b. Then how many pairs of a and b, आप मतलब कितने a and b के pairs possible है मॉड्यूलो 10 to power 9 plus 7? इसमें कोई अप्रोच बता सकता है कैसे करोगे? 2 मिनट का टाइम दे प्लीज। हाँ भाई, अच्छा ठीक है, चूतिया हूँ मैं। हाँ ठीक है सर। और कोई निश्चय को छोड़िए तो क्या 1,1 नहीं होनी चाहिए? क्या 1,1? सॉरी
अरे नहीं ना, नहीं, 1,1 इस एग्जांपल की बात हाँ कर रहा है। नहीं, हाँ। a प्लस बी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a एक्स और b हो जाएगा 0। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए और बी नहीं हो पाएगा, इसलिए 1,1 नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब ए अच्छा, ओके और ओके बी ओके के ओके ओके, हाँ ओके एडजेसेंट समझा। बिट्स, हम्म हाँ ए एंड बी के मैचिंग बिट्स जो होंगे हम्म वो हाँ वन नहीं होना चाहिए सेम प्लेस पर। ओके। तो इसमें ये एक हाँ, तो अपन को बेसिकली ऑब्जर्वेशन आ हाँ गई, बट हाँ उस ऑब्जर्वेशन से कोड कैसे करेगा वो सोचने की कोशिश कर अभी। वही ऑब्जर्वेशन बाद में बता देना, अभी और सोच रहे थे। ऑब्जर्व, ठीक है चलो। किसी को जोर में प्रॉब्लम है, व्हाट डज इट मीन बाय जोर? किसी को है तो भाई, मतलब वो खोल सकता है व्हाट इज जोर वाला, वो ओपनेबल है या नहीं? अरे नहीं, ओपनेबल नहीं है, फोटो है सॉरी। देखो। अच्छा क्वेश्चन, इतने फाड़ क्वेश्चन लाया कहाँ से तू? भाई करे यार। अच्छा, आर्ट फील्डर का है ये। ओह अच्छा, वो डीपी कॉन्टेस्ट। नहीं, डीपी कॉन्टेस्ट का नहीं, डीपी कॉन्टेस्ट वाला पहला था, डिजिट सम वाला फालतू सा। अच्छा यार, आर्ट कोडर ओपी यार। मतलब इसका विजार्ड डिजिट टीपीपी सॉल्यूशन है वैसे, वो मैंने पढ़ा नहीं, मतलब आई डोंट नो, पर है, मतलब लोगों ने करा। एनीबडी हु हैज गॉट टू द कंप्लीट सॉल्यूशन, जिनको सॉल्यूशन समझ में आया है? पहले जो आदित्य ने जो ऑब्जर्वेशन बोली थी वो एक्सप्लेन कर देंगे एंड देन सॉल्यूशन, बट किसी को अभी सॉल्यूशन आ रहा है दिमाग में, भानु या कोई भी तो बता सकता है। नहीं, अपने ईयर वाले भी बोल सकते हो वैसे। हाँ, अपने वाले ईयर वाले भी हाँ ये हाँ, क्वेश्चन वैसे ठीक ही है। ठीक हाँ है, मतलब हाँ, ठीक है, मतलब हाँ। अच्छा है। डीपी स्टेट में पहली स्टेट तो हम ऑफ कोर्स द पोजीशन स्टोर करेंगे, वो 0 से लेके जो 10⁵ दिया गया है इनपुट में, राइट? हम्म एंड लास्ट डिजिट, लास्ट स्टेट हम टी स्टोर करेंगे विच इज द टाइट वन। हम्म बीच में क्या हम्म स्टोर होना चाहिए? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। हाँ ठीक है, चलो ये ऑब्जर्वेशन तो बता देते तब तक, लाइक मतलब एडजेसेंट बिट्स जीरो, मतलब सेम 1 क्यों नहीं हो सकते। बेसिकली क्या होता है, a प्लस बी इक्वल टू a एक्स और b प्लस 2 टाइम्स a एंड b। दिस इज फॉर एवरी ए एंड बी, नॉट ओनली हाँ कोई इस क्वेश्चन के लिए कोई भी ए और बी लो उसमें यही होता है। ये ये प्रूव भी कर सकते हो बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हाँ, एडिशन। वही बेसिकली a और b को तुम 0 0 0 1 1 0 1 1 ले लो एंड इसके सब वैल्यूज निकाल के देख लो, तो ये प्रूव हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं। सो यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल दे चुके हैं, तो ये चले गए, देयरफॉर a एंड b इक्वल टू 0, देयरफॉर एट अ गिवन बिट दोनों दोनों की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हो गई। अब डीपी स्टेट का सोचो कोई तो। सो बेसिकली यार ए एंड बी जो भी होंगे उनका एंड 0 होगा। तो ऐसा सोचो कि एज और बी को हम अगर स्टोर कर सकें, अगर हमारे पास एज और बी है तो उससे हम ए और बी निकाल सकते हैं क्या? वैसे भी विदाउट स्टेट से होता है, ठीक है। अच्छा, तेरा विदाउट स्टेट से हो रहा है क्या? हाँ हाँ। लॉल। अरे चल। मतलब ये डिजिट डीपी का ऐसा क्वेश्चन नहीं मैंने यूज किया था, इसलिए मतलब डिजिट डीपी को साथ दिया, डाल दिया एप्लीकेशन एज। लेकिन अच्छा चल, तेरा फिर और ऑप्टिमाइज है, छोड़, फिर मैं नहीं बोल रहा कुछ।
तेरा ठीक है विदाउट चल स्टेट कैसे हो रहा है भाई? वो तो स्टोर करना पड़ेगा शायद कि कितने बता रहा हूँ बता रहा हूँ मतलब हाँ ठीक है हाँ चलो ठीक है आते हैं यहाँ पे तो फर्स्ट स्टेट मेरी क्या होगी लेंथ होगी नंबर लेंथ कितना होगा नंबर का 10⁵ के आसपास होगा +5 ले लिया मतलब अपर बाउंड ले लिया यहाँ पे टाइट हो गया एंड सपोज मेरा पोजीशन इक्वल टू साइज हो गया देन आई विल बी रिटर्निंग 1 वो तो ठीक है मतलब मैंने एक स्ट्रिंग इटरेट कर ली अब यहाँ पे क्या है a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू एल सो मैं a या b किसी पे भी डिजिट पे नहीं लगा रहा मैं a प्लस बी सपोज इसका वैल्यू है k देन मैं k के ऊपर आइटरेट करता हूँ k के ऊपर डिजिट लगा रहा हूँ बेसिकली k के डिजिट्स देख रहा हूँ ठीक है सो k इज लेस देन इक्वल टू l ये तो हम निकाल सकते हैं जीडीपी के मतलब हिसाब से लाइक हमने जो स्टार्टिंग में किया था वही चीज बट इसमें हम कंडीशन चेक करेंगे ठीक है सो लिमिट क्या होगा मतलब यहाँ पे एल है मतलब यहाँ पे एस अपना जो है ना एस इक्वल टू एल है एक्चुअली तो अगर मेरा टाइट होगा तो मैं वो एस पोस्ट -0 ले लूंगा या फिर 1 ले लूंगा आंसर इक्वल टू 0 हो गया सपोज मेरा ये जो है जो करंट बिट है मेरा सपोज के का जो करंट बिट है इफ दैट इज 1 देन क्या हो सकता है इधर के का करंट बिट 1 है मतलब क्या होगा a प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा मतलब एट दैट पोजिशन ए का बिट और बी का बिट उनकी सम 1 हो जाएगी देयरफॉर क्या होगा ए की वैल्यू हो सकती 0 बी की वैल्यू हो सकती 1 एंड अगेन ए की वैल्यू हो सकती 1 एंड बी की हो सकती 0 ठीक है देयरफॉर जब भी अपना ये i इक्वल टू 1 लाइक करंट मतलब k की करंट वैल्यू 1 है करंट बिट देयरफॉर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट मतलब दो नंबर्स आएंगे ना यहाँ पे दो पेयर्स आ जाएंगी तो इसलिए 2 इंटू सॉल्व नेक्स्ट वाला हो जाएगा एंड सपोज मेरा k का करंट बिट इक्वल टू 0 है देयरफॉर क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा बट a प्लस बी इक्वल टू 0 है एंड क्या होगा फिर दो केसेस में हो सकता है एक तो a और b दोनों 1 है या फिर a और b दोनों 0 है बट a और b अगर दोनों 1 है मतलब करंट बिट तो क्या हो जाएगा इनका एंड जो वैल्यू है a एंड b वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि वो जो करंट बिट है मतलब वो दैट स्पेसिफिक बिट विल बी सेट टू 1 ठीक है देयरफॉर a मतलब यहाँ पे तो एक ही चॉइस है मतलब दोनों को 0 0 होना चाहिए तो इसलिए उसके बाद बस 1 इंटू सॉल्व नेक्स्ट हो जाएगा वैसे समझ में आ गया किसी को सबको ये क्या कह रहा था हाँ ना बोल दो भाई 10 रुपए देता है सुपर चैट यार ठीक है अबे भाई YouTube पे कराना चाहिए आई गेस समझ में आ गया होगा ठीक है अबे मैं म्यूट था सॉरी भाई 10 रुपए सुपर चैट भाई हाँ तो ठीक है ये बेसिकली कोड किया है अगर i इक्वल टू 1 है तो मैं उसको 2 टाइम्स सॉल्व ऑफ ये कर दूंगा आगे वाला और ये मॉड ही है बेसिकली मॉड 2 लिख दिया है वो 998 जो भी है वो अलग वाला चीज है ठीक है तो ये सोल्यूशन सबको समझ में आया मैं जो सोच रहा था आई वॉज थिंकिंग कि ये जो इंटू 2 कर रहा है पहले उसकी जगह हम सॉल्व पॉज प्लस 1 कॉमा हम वो स्टोर करेंगे कि इस नंबर में कितने बिट्स 1 है राइट एंड जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो पॉज इज इक्वल टू इंट एस डॉट साइज की जगह हम रिटर्न उस स्टेट का वो करेंगे कि मतलब बीच में हमारे पास स्टेट समझ लो हमारे पास 5 बिट्स ऑन है इस नंबर में राइट तो हम 2 टू द पावर 5 रिटर्न करेंगे इंस्टेड ऑफ 1 बट निश्चय उसमें वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का दिक्कत नहीं आएगा क्या लेन इनटू मतलब लेंथ यहाँ अब पे भी भी 10 10 टू to पावर the 5 10 टू पावर 5 इनटू अच्छा 10 टू पावर 5 फक हाँ ना वही ना 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 ना। तो जो मैं सोच रहा था वो बहुत गलत था एज यू कैन सी मतलब ब्राउनी ही है हमारे कॉलेज का बेस्ट अभी तो अरे यार तू जान बैठा ठीक है हाँ, अब ये हो गया क्वेश्चन 4 भी हो गया क्वेश्चन 5 इज इंटरेस्टिंग मतलब इसमें मतलब काफी सही चीज है ये देख लो थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसमें काउंट नहीं करना हमें स्पेसिफिक नंबर फाइंड करना लाइक हमें एक रेंज दी है a टू b देन वी हैव टू फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर्स बिटवीन a एंड b जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो डिजिट्स मतलब डिजिट का उनके डिजिट्स ले लिए सपोज ये नंबर है 2 3 5 तो डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना होता है 2 इंटू 3 इंटू 5 विच इक्वल टू 30 तो ये मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए तो हमें ऐसा कौन सा नंबर है बिटवीन a टू b वो देखना है मतलब ये प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं चाहिए सपोज 235 मेरा आंसर है तो मेरे को 235 रिटर्न करना है इसका प्रोडक्ट की वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है तो इसमें सोचो स्टेट्स क्या हो सकती है
मतलब पिछले वाले से तो इजी है आई थिंक, मतलब बस डीपी वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, अब हमें डीपी वो भी रिटर्न करना है कि कौन से ऑप्टिमल वैल्यू पे हमें डीपी रिटर्न हुई है। हाँ ठीक है, मतलब बस थोड़ा कोड बढ़ा है उसकी बात, और हाँ कुछ कोड नहीं। बड़ा है पर बस। मतलब इसका 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 एक मतलब और एक वर्जन है, मतलब थोड़ा मॉडिफाई करके, वो कैंपस चैप्टर में आया था शायद से, इसका मॉडिफाइड वर्जन सब कुछ का। Oh. चलो कुछ नहीं, सॉरी। ठीक है। और किसी को आ रहा है, मतलब ठीक है, मतलब तो फिर भी सोच लो। मतलब इसमें इसमें और एक चीज है, तुम जी ऑफ, मतलब ये जो है ये वाली चीज जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी माइनस वन, वो नहीं कर सकते। और क्योंकि यहाँ पे काउंट तो स्टोर नहीं करते, तुम्हें स्पेसिफिक नंबर चाहिए, तो तुम्हें और एक नीचे वाला भी बाउंड देखना पड़ेगा इस केस में। मूव ऑन कर लो, अगर हाँ तो चैट में लिख दो यस वगैरह कुछ भी, क्या सोच रहे हो? चलो ठीक है यार, मूव भी करता हूँ आगे से। क्या हो रहा है जैसा। हाँ तो यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, डीपी एरे जो होगा उसमें मैं पेयर स्टोर करूंगा। पेयर में क्या होगा, मेरी ये जो फर्स्ट जो वैल्यू है पेयर की, वो मेरा वैल्यू स्टोर करेगी, दैट इज प्रोडक्ट। एंड जो सेकंड है वो मेरा एक्चुअल नंबर स्टोर करेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टेट्स होंगी 22 टू 20, इसलिए क्योंकि 10 टू पावर 18 तक नंबर्स है, तो इसलिए 20 है। देन एक सेकेंड, ये जो नेक्स्ट वाला 2 है वो लोअर बाउंड के टाइट के लिए है। मतलब यहाँ पे एक लोअर बाउंड भी होगा, क्योंकि हमें ए टू बी में देखना है। पहले क्या करते थे हम, बस बी का देखते थे, 0 टू बी देखते थे, तो बस हम अपर बाउंड चेक करते थे टाइट का। अब हमें नीचे वाला भी चेक करना पड़ेगा, ए वाले का। तो इसके लिए ये ए वाला टाइट है, ये बी वाला टाइट है। और एक चीज है इसमें, सपोज ये ऐसा मेरा नंबर है, देखो हम हमें सपोज कोई डिजिट नंबर जनरेट करना है, 0 0 2 34 सपोज। तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम ऐसा नंबर लेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे नंबर सब इग्नोर हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हमें और एक वेरिएबल मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज स्टार्ट। लाइक मेरा नंबर स्टार्ट हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा स्टार्ट यहाँ पे एक्चुअली 0 ही होगा, बट यहाँ पे मेरा स्टार्ट 1 हो जाएगा इधर इसके बाद से। तो इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, पर इसका वैल्यू एक्चुअली कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, तो वो आ जाएगा। अगर हमने ये वाली चीज नहीं करी तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, तो उसमें गलत आंसर आ सकता है। समझ रहा है ना ये? ठीक है। हाँ तो अगर मेरे पोजीशन इक्वल टू स्ट्रिंग की साइज होगी तो मैं एक 1 रिटर्न कर दूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूंगा। लाइक सपोज मैं लीफ नोड पे हूँ, तो मेरे को प्रोडक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज 1 वो रिटर्न करनी पड़ेगी, और एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को मैं उसके बाद उसके अपेंड करूंगा, अलग नंबर अपेंड करूंगा, डिजिट्स अपेंड करूंगा। सो और डीपी पहले से कैलकुलेट करके रखी तो वही रिटर्न कर दूंगा। और हाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिमिट की जगह पे दो अलग अलग बाउंड है, ये स्टार्टिंग बाउंड है, ये एंडिंग बाउंड है। तो मेरा सपोज नीचे वाला जो टाइट है, मतलब यहाँ पे देख लो, मेरी जो लोअर बाउंड है एल एफ, और अपर बाउंड है आर टी। तो एल एफ का जो लोअर बाउंड है उसको मैंने टी से लिया है, और मतलब टी मतलब स्ट्रिंग टी को मैंने वो असाइन किया, और आर टी को मैंने स्ट्रिंग एस असाइन करी है। सो स्ट्रिंग टी को एल एफ असाइन किया, तो मतलब एल एफ को मतलब हाँ। देन क्या होगा, मेरे को लोअर बाउंड चेक करना है। अगर मेरा टाइट सेट है तो मैं मेरा ये क्या होगा, टी पोस्ट माइनस 0, मतलब मेरा सपोज ये है, लोअर बाउंड है 57 और अपर बाउंड है 89। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आया हूं मैं पोजीशन 0 पे। सो मैं कोई भी नंबर, मेरा जो स्टार्टिंग नंबर है यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट पे, वो दैट शुड बी बिटवीन 5 to 8, ठीक है। सो मेरा टाइट इक्वल टू 1 है, देयरफॉर उसका स्टार्टिंग वैल्यू शुड बी एटलीस्ट 5, तो उसके लिए वो है ये वाली चीज। एंड सपोज मेरा टाइट इक्वल टू 0 है, देन आई कैन टेक एनी नंबर बिटवीन, लाइक उसका स्टार्टिंग वैल्यू 0 भी हो सकता है। ये तो वही अपर बाउंड वाली चीज होगी जो पहले से करते आ रहा है, लाइक 0 और 9, मतलब अगर टाइट होगा तो एस पोस्ट माइनस 0 या फिर 9 हो जाएगा।
और ये जो रिजल्ट है ये मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करने के लिए है। मतलब हम चेक करने के लिए कि इसकी इसकी जो अभी हमारी जो हमारा अभी जनरेट हुआ है उसकी उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम प्रोडक्ट से ज्यादा है कि नहीं उसके लिए। और ये स्ट्रिंग आंसर लाइक अभी ये गिवन नंबर स्टोर करने के लिए आंसर है। मतलब अभी जो नंबर आएगा हम जनरेट करेंगे उसके लिए ये बना के रखा है। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी ये हम स्टार्ट मतलब लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक एडिट करेंगे डिजिट के लिए। मतलब इस केस में 5 to 8, यहाँ पे तो अपना ST5 है और ET8 है। तो अभी क्या होगा, सपोज हमारा अभी करंट डिजिट हमें 0 आया है, जैसे इस केस में 0 करंट डिजिट आया और स्टार्ट हुआ ही नहीं है, तो हम वैल्यू को 0 नहीं लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि समझ रहा है ना, अगर हम वैल्यू को 0 ले लेंगे तो वो प्रोडक्ट इवेंचुअली 0 ही आने वाला है। अगर वैसी केस नहीं होगी तो हम वैल्यू को आई ले लेंगे। आई एज एन मतलब अभी इस केस में आई 0 है तो 0 ले ही नहीं सकते, तो हमें 1 लेना था इस केस में। देन अगेन हम एक टेम्पररी पेयर बना देंगे लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिंग का। देन उसके आगे वाला हम चेक करेंगे पोजीशन +1 एंड यही टाइट वाला वही चीज, बस ये लोअर बाउंड वाला टाइट है या अपर बाउंड वाला टाइट है। एंड ये जो स्टार्ट है, सपोज मेरा आई ग्रेटर देन 0 हो गया तो मेरा स्टार्ट विल बी सेट टू 1। तो मतलब इस केस में स्टार्ट 1 हो जाता है ना, अगर मेरा आई इज ग्रेटर देन 0 तो मेरा स्टार्ट 1 हो जाता है, तो उसके लिए ये कर दिया है। देन हाँ, सो क्या हो जाएगा, सपोज मेरे को एक ये है, ये जो पोजीशन +1 और ये वाली स्ट्रिंग है ना, मतलब ये वाला फंक्शन मेरा सपोज करंट आई है मेरा 5 और ये वाला फंक्शन मेरे को रिटर्न कर रहा है 35 और क्या है 75 ले रहा है, 75 नहीं 37 ले लिया नंबर, और इसको लिया मैंने कितना 42। ये पैर आ रही है मेरी, ये मेरी के की वैल्यू ये है, मतलब ये नंबर है मेरा और ये मेरा पैर है, मतलब उसका प्रोडक्ट है 2 × 3 × 7 दैट इज 42। और मेरा अभी जो डिजिट आएगा वो 5 होगा। तो क्या हो गया उसमें, हाँ, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, k.first इंटू वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, आई थी, सो k.first इंटू वैल्यू कितनी होगी 5 × 42 दैट इज 210। बट अभी मेरे को नंबर क्या स्टोर करना है 5 2 3 7, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूंगा। मतलब सपोज मेरा i नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं इसको रिवर्स कर दूंगा 7 3 2, बाद में पीछे 5 ऐड कर दूंगा, देन वापस रिवर्स कर दूंगा 5 2 3 7, तो यही नंबर आ जाएगा। तो मेरा जो पेयर यहाँ पे आ रहा है नया वाला, तो वो क्या आ रहा है 210, 5 2 3 7, और वो मैं सेम डीपी में स्टोर करता हूँ। बस यही वाली चीज यहाँ पे करी है। इसमें किसी को डाउट? हेलो, नहीं हाँ अरे वैसे इसको तो काफी एक इजी वे आउट भी होगा ना, जैसे आर एक बार कंसिडर कर लो 5500 है, तो वापस बोल। इसके काफी इजी सॉल्यूशन भी देख हाँ सकते बिना डीपी के। फॉर एग्जांपल अगर आर 5500 है तो पहले मैं चेक करूंगा कि 4 मतलब जो आर की हाईएस्ट बिट है, मतलब हाईएस्ट डिजिट का नंबर है 4999, ये मैं चेक करूंगा कि एल से बड़ा है कि नहीं, मतलब वैलिड चेक करूंगा कि ये वैलिड है कि नहीं। अगर ये है तो इसका प्रोडक्ट विल बी 4 एंड जो भी है प्रीसीडिंग नाइन्स का प्रोडक्ट, तो वो अब अगर ये फिर नेक्स्ट में मूव करूंगा कि उसको 5 सेट कर दूंगा, और अगला क्या था 500 का, तो 5499 चेक करूंगा मैं। तो मतलब ये ये 5 हो गया, फिर वो 5499, फिर तू चेक करेगा 55 जीरो 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 से कम क्या हाँ करोगे, 0 0 तो क्या ही होगा, मतलब वैसा तो टाइप आ उन जाएगा। सबको बस, हाँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट का लॉजिक ये होता है ना प्रूफ कि है क्या बाकी तेरे सारे पास? क्या प्रूफ? प्रूफ वैसे वैसे ट्राई कर सकते सर। हैं, बाद में ट्राई कर सकते हैं इसको, हाँ। जिम का क्वेश्चन है, कोड फोर्सेस मतलब का मोस्ट मोस्टली प्रोबेबली प्रूफ डिजिटल तो का ही नहीं है। आएगा तेरा, हाँ। मतलब ऐसा करना कि ये कोड लिखना वो कोड लिखना और मतलब कंपेयर करते जाना जब तक रॉन्ग आंसर ना आ जाए। हाँ ठीक है, मतलब या फिर इसी हाँ मतलब अगर लिंक हो तो वो डाल दे उस पे सबमिट करके हाँ देख। डाल दिया इसमें है, डाल दिया क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3, मतलब एक अलग सोर्स से मिला था, मतलब वही, तो उसकी जगह पे तुम वो रिक्वायर्ड सबस्ट्रिंग वाला कर सकते हो, CSS वाला जो बोला था। हाँ और ये लिख दिया है कौन से ये तो हाँ, ये मोस्टली JTP का ही क्वेश्चन है, मतलब दूसरा सोल्यूशन तो पता नहीं मेरे को इसका है कि नहीं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मतलब ऐसे टाइप के ग्रीडी रॉन्ग आंसर दे देते हैं, जब तक डीपी अच्छा सा है जिसका प्रूफ हमें समझ में आ रहा है, तो मैं आई थिंक वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है।
हम्म ओके, बट मतलब वही प्रोडक्ट वाला लॉजिक आता है ना, तो प्रोडक्ट में 9 में प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा ही आएगा, हाँ लाइक हाँ समझ रहा तेरा हूँ। लॉजिक तो समझ में आ रहा है, लॉजिक तो क्लियर है, बट मतलब वही है कि मतलब कोई एक काउंटर एग्जांपल मिल गया उसका तो फिर लग गए, फिर वो काउंटर एग्जांपल के लिए कोड लिखो, उसके बाद एक और काउंटर एग्जांपल मिल गया तो वापस लग गए। वही वही। अच्छा, इसका एक मेन फंक्शन का भी बता देता हूँ। मेन फंक्शन में क्या किया है, हमारा जो एल है, मतलब एल की जो साइज, मतलब लोअर बाउंड सपोज 57 है और अपर बाउंड मेरा है 2391, ऐसा 2391 है। तो मेरे को क्या होगा, मैं यहाँ पे पोजीशन देख रहा हूँ, ये वाली पोजीशन, तो यहाँ पे कुछ नंबर है ही नहीं, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा बेसिकली। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो छोटा नंबर है उसके पहले जीरो ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे वो चीज करके रखी है, ये वाली चीज। तो बस उसमें कुछ नहीं है, और बाद में सॉल्व कर दिया, यहाँ पे टाइप 1 है, यहाँ पे भी टाइप 1 है, और इसकी सेकंड वैल्यू क्योंकि हमें एक्चुअल नंबर रिटर्न करना है वो है, बस हो गया। एंड मेरा एक डाउट है, ये हाँ जो बोल रहे। ऑल एलएफ है ना, तो हाँ हाँ, तूने मतलब खुद हैशटैग डिफाइन ऑल किया है या फिर मतलब होता है आपका ऐसे? नहीं, खुद 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 किया है भाई, खुद किया है वो, मतलब आजकल तो सभी करते हैं, ठीक है। हाँ मतलब मैंने वापस को, हाँ मैंने वही। एक्चुअल में वैभव ने बताया था मुझे कि ऑल करते हैं लोग, तो मैंने ऑल किया, मेरा मतलब कोड एरर देने लग गया, मेरे को लगा यार ऑल तो मेरे में तो है ही नहीं, तुम कौन सा सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो। हम्म, अच्छा चलो। ये जो ये श्रेष्ठ बोला था उसका उसके बाद क्या था? 99 लाके उसके बाद क्या करना है? मतलब मतलब कैसे वो नेक्स्ट वाले पे जाएगा? चेक करने हैं कि मतलब पीछे से चलते जाओ एंड लाइक मतलब उसको थोड़ा सा कम करो एंड नाइन मतलब अच्छा आर बराबर। मतलब मैं कह रहा आर हाँ की जो पोजीशन है ना उसकी एक बिट कम करो, बाकी सब में 9 भर दो, लाइक उसका टाइट जीरो करके, तो मतलब बाकी सब पहले में 9। आर का चेक करो, आर को कंसिडर करोगे, और फिर तुम कंसिडर करोगे कि आर का वंस डिजिट मैंने एक कम कर दिया, वैसे वंस डिजिट क्यों चेक करोगे, टेंस डिजिट एक कम कर दिया, लास्ट डिजिट मैंने 9 कर दिया, फिर हंड्रेड डिजिट एक कम किया और टेंस डिजिट वंस डिजिट दोनों 9 कर दिया, फिर थाउजेंड डिजिट एक कम किया, टेंस हंड्रेड डिजिट टेंस डिजिट वंस डिजिट तीनों 9 कर दिए, ऐसे करते करते चलोगे। हाँ हम्म, एग्जैक्टली। अरे चलो फिर। ये फास्ट हाँ, है रिवर्स करके पुश बैक करके वापस रिवर्स करना, लाइक ये। ये फास्टर नहीं है, ये इसलिए लिखा है इसने क्योंकि ये लेजी है, और मतलब तो इसके ठीक है, एफिशिएंट में क्या है? मतलब इसमें, मतलब इसमें कुछ, मतलब डेक यूज कर सकता है, चाहिए तो थोड़ा हाँ, फास्ट चाहिए तो। हाँ या हाँ। फिर मतलब एक नई स्ट्रिंग बना, वो सबसे हाँ। फास्ट रहेगा आई थिंक, हम्म। पता नहीं। मतलब रिपीटेडली एस इक्वल टू जीरो प्लस एस नहीं रहेगा क्या? अच्छा। ना। हाँ, मतलब अरे, मतलब ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस क्वेश्चन के, देखो हम्म टू 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 ज्यादा तो पर इसमें मतलब स्ट्रिंग डिफरेंस वाले नहीं। में काम हाँ तो है ही है। हाँ। हम्म। मतलब इसकी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मतलब आगे दे दिया है, मतलब इसकी आगे कहाँ दिया? मॉडिफाइड, ये भाई इतना सारा दिया है। ओ, इसी में से हाँ, कोई एक दिखा दे, कितना टाइम बचा है अपने पास? हो हो गया है गया वैसे वैसे। 8:30। हाँ हाँ तो हो गए 2 मिनट, सो किसी के पास कोई डाउट्स हैं तो वो पूछ सकते हो। हाँ, मतलब आप कैसे भी डाउट पूछ लो। हम्म। मैं यार, मैं फास्ट ही हूँ, फास्ट बोलता हूँ मतलब। नहीं मतलब बाद में ठीक स्लो हो गया था, एक बार वो वाली स्लाइड हम्म, वापस दिखा दे जो मतलब तूने 5 पॉइंट लिखे थे, वो स्टार्टिंग में किसी को घंटा समझ नहीं आए होंगे आई थिंक। अच्छा ठीक है, एक सेकंड देख लो। हाँ, अब हाँ शायद तक समझ नहीं आ जाएंगे। ये वाला तो ठीक है, ये वाला तो तब भी समझ में आ गया हाँ। था। नेक्स्ट वाली स्लाइड या तो वापस देखो बोल। बेसिकली ये, हाँ बेसिकली ये है कि हमने नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। देन हम क्या करेंगे, उस गिवन नंबर से हम लेस देन और इक्वल टू मतलब नंबर्स जनरेट करते रहेंगे और उसको डीपी के हिसाब से कैलकुलेट करते रहेंगे, मतलब वही ट्री वाली चीज होगी। एंड हम एक डिजिट से स्टार्ट करेंगे, मतलब स्टार्टिंग में एक डिजिट देखेंगे, उसके बाद और एक इंक्रीमेंट कर देंगे, पॉस हो गया, पॉस इक्वल टू 0, फिर पॉस इक्वल टू 1, वो वाली चीज हो गई, ये वाली चीज। एंड वही, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स लेस देन n है, मतलब सपोज अपना नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, मतलब अभी अपर बाउंड 537 है, तो n इक्वल टू 3 हो गया। सो अगर हमें छोटे नंबर्स देखने 005 या 025 ऐसा, तो उसके लिए हम स्टार्टिंग में जीरोस डाल सकते हैं। बस यही यही चीज है ना ये इसमें। अगर हमें प्रोडक्ट वगैरह को ऐसा कुछ ऐसा निकालना है तो ये जीरोस दिक्कत देंगे, तो इसलिए और एक वेरिएबल रखना पड़ेगा स्टार्ट करके, मतलब तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है कि नहीं स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को ग्लोबली डिक्लेयर करो, अगर डिक्लेयर ग्लोबली नहीं किया तो टाइम को मतलब टाइम ज्यादा लग जाता है बेसिकली, या फिर ओवरहेड मतलब ज्यादा पास होता बाय रेफरेंस करो, है। हाँ वो भी ठीक है। ग्लोबल मत डिक्लेयर करा करो, खराब चीज होती है। हम्म, या फिर
ये क्वेश्चंस देख लेना, काफी सही है सब सब, मतलब सब नहीं, मतलब ये लास्ट के तो देख लेना, मीडियम के बाद, ये मीडियम क्वेश्चंस के मेरे बाद को हाँ। भी दे देना, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी तुम लाइक डायरेक्ट उठा सकते हो। हाँ पीपीटी दे दूंगा, हम्म। वो डीएफए बना के देता हूँ मैं अच्छे से, दूसरे वाले पीपीटी में गंदा बनाया हुआ। हाँ। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। थैंक्स टू कोडिंग क्लब भाई। वेलकम, थैंक्स टू It तेजस चैनर एज वेल यहाँ पे आने के लिए एंड ये हाँ भाई। बढ़िया सा लेक्चर देने के लिए। इंट्रो सीएससीए का था, थैंक्स कोडिंग क्लब, काफी सही कहा आपने। अरे वो मतलब 30 जने चलो से ठीक है 18 जने करवा दिए। भाई, अरे ठीक है, मतलब वो बाद में होता ही होता, मतलब कुछ नहीं। थैंक्स तेजस भैया। भाई एमॉन अनम्यूट हो जा, एमॉन है तो। I'm closing the recording, and this recording will be available on YouTube as well. I think today itself. And yeah, the lecture is officially closed. Thanks to Tejas.